Hello children, you are welcome to the Digi classes of Christchurch Convent, Gardawara. I am Amit Toshniwal. This video is for class 12th. Subject is economics. Chapter number 3, demand and price elasticity. This is the final part. It means this is the last video of lesson number 3. In this video, we shall discuss about what is the difference between law of demand and price elasticity of demand. Actually, law of demand is a qualitative statement, not quantitative. So, what does it depicts? It depicts direction of change in demand in response to the change of its price. Matlab, direction means either it is going high or going low. But how much? How much means quantity is not determined by this. So it does not specify the quantity of change in demand in response to the change in price. For this, we'll have to study price elasticity of demand so that we can get its quantity and how much demand is changed. So you can say elasticity of demand represents the quantitative change in demand for a commodity in response to the change of its price. So two things are there. Law of demand is qualitative. Qualitative means only shows the direction, whether going high or going low, whereas elasticity of demand depicts its quantity, how much demand is going up or going low. Understand? For this, we have degrees of price elasticity, or you can say types of price elasticity of demand. So first is unit or unitary elasticity of demand. So in this case, demand changes in the same proportion in which the price changes. So that is called unit elasticity of demand or proportionately elastic demand. And for this we have formula delta Q upon Q, मतलब कि change in quantity upon quantity is equal to change in price upon price. Okay? So it is unitary elasticity of demand which is in the proportion. इसका मतलब हुआ कि यदि एक बढ़ा तो एक डिमांड घटी और यदि दो घटी तो दो, मतलब यदि प्राइस 1 रुपए बढ़ी तो उसकी यूनिट जो है 1 यूनिट बढ़ी यदि प्राइस तो उसकी जो डिमांड है वो 1 यूनिट कम हो जाएगी, और यदि प्राइस 2 यूनिट कम हो रही है तो डिमांड भी 2 यूनिट बढ़ जाएगी, यानी कि प्रोपोर्शन में होगा. अंडरस्टैंड? नाउ सेकंड इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड या मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी. मतलब डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है प्राइस की कंपैरिजन में, तब ये होगा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यानी मोर देन यूनिट. यूनिट मींस 1, तो 1 से मोर यानी 1 से ज्यादा जब होगी तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन फॉर दिस? जब when the change in demand for a commodity in response to the change in its price is more than proportion, in a more than 1. Okay, so that is called relatively elastic demand, and formula for this is change in quantity upon quantity is more than change in price upon price. So you are seeing its diagrammatic representation. Here E is elasticity is more than 1, not less. Third is relatively inelastic demand. इसको हम बोलते हैं लेस देन, यानी 1 से कम.
उतना इम्पैक्ट नहीं होता। मतलब क्या हुआ, when the change in price of a commodity results in the change of demand less than proportionately, so that is called relatively inelastic demand or less than unit elasticity demand। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज लेस देन टू डेल्टा पी अपॉन पी, यानी कि डिमांड उतनी तेजी से कम नहीं होती जितनी तेजी से प्राइस इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यानी प्राइस कुछ भी हो जाए डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयर विल नॉट बी एनी चेंज। व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड फॉर द कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स प्राइस, सो दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक। ओके, कोई चेंज नहीं होगा कितनी भी उसकी कीमत बढ़ जाए, दैट इज जीरो, इक्वल टू, इट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। चेंज इज change in demand upon, sorry, change in quantity upon quantity is equal to zero. It never changes, totally inelastic. And fifth is perfectly elastic demand, when the change is in price causes an infinitely large changes in quantity demanded, so demand is called perfectly elastic। यानी कि थोड़ा सा भी यदि रेट बढ़ेगा तो उसकी डिमांड जो होगी वो डिसअपियर हो जाएगी मार्केट से। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू जीरो, यानी प्राइस चेंज होने पे डिमांड डिसअपियर हो जाने की संभावना है। परफेक्टली इलास्टिक, टोटली, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू मेजर प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमारे पास इसके लिए क्या है, दो मोस्ट पॉपुलर मेथड्स हैं। पहली है प्रोपोर्शनल यानी कि परसेंटेज मेथड, और दूसरी है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ रहे हैं प्रोपोर्शनल यानी कि परसेंटेज मेथड। ओके, तो प्रोपोर्शनल मेथड में क्या होता है, proportion or percentage change in quantity demanded is divided by the proportionate or percentage change in price। तो इसका फॉर्मूला है सिंपल सा, proportionate change in demand, मतलब कि फॉर्मूला क्या हो गया, elasticity of price is equal to proportionate change in demand upon percentage change in price। This is first one। अब इसमें आपके पास तीन सिचुएशन हो सकती हैं जो अभी आपने पढ़ी, मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी, लेस देन यूनिट इलास्टिसिटी और यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जब मोर देन रहेगा तो उस समय क्या रहेगा, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। हर स्थिति में फॉर्मूला तो वही रहने वाला है तीनों कंडीशन में, बस ये रहेगा कि पहली वाली क्या है, मोर देन यूनिट। मोर देन यूनिट मतलब कि उसका जो आंसर होगा ये हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन द चेंज इन डिमांड इज मोर देन प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस, ये अपन ने पढ़ा था अभी इसके पहले। तो दैट इज कॉल्ड मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसी से अपन फॉर्मूला बना लेंगे प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेस देन में क्या होगा, जो इलास्टिसिटी रहेगी दैट विल बी, उसका जो भी हमेशा आंसर निकलेगा वो हमेशा 1 से कम आएगा, लेस देन 1, यानी कि पॉइंट में मिलेगा या आपको कौन से फ्रैक्शन में मिलेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में मिलेगा, 1/2, इस तरीके से 1/4, लाइक दैट, 5/7, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा इसका आंसर हमेशा। तो लेस देन यूनिट इलास्टिसिटी क्या होगी, जब परसेंटेज चेंज जो होता है डिमांड का वो लेस रहेगा परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस से, तो उसको हम कहेंगे लेस देन यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और यूनिट में इक्वल हो जाएगा, यूनिट का मतलब होता है 1। तो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो भी चेंज होता है डिमांड में वो इक्वल रहेगा उसकी प्राइस के चेंज के हिसाब से। जितनी प्राइस कम या ज्यादा होगी उसी हिसाब से बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन में उस कमोडिटी की डिमांड भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ योर वीडियो एंड दिस इज द एंड ऑफ लेसन नंबर 3। लास्ट वन, ये